So students, you should write the question. Yesterday, I have taught you all people how to prepare the assets account. यही था लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसेट अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके ठीक है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे दोबारा, एंड वी आर डूइंग दी प्रैक्टिस बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, है ना? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं ऑलवेज। यही पढ़ाया था मैंने। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। ओके, so start writing question. Z Limited issued, sorry, Z Limited bought a machine. Z Limited bought a machine on 1st January 2008 for rupees 1 lakh and another machine on 1st April 2009 for rupees 2 lakhs. Okay. So Z Limited, start writing the question because I'll be erasing immediately, na? Are you writing? So Z Limited bought a machine on 1st January 2008 for rupees how much? 1 lakh, and another machine on 1st April 2009 for rupees 2 lakh. Means two machines have been purchased, right? For the depreciation would be charged at 10% per annum by original cost method. Okay. On 1st October 2009, first machine was sold for rupees 80,000. Prepare machine account up to 31st March 2010. Assuming that books are closed on 31st March
every year. So note it down. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. Done. Which line is not visible? I am reading. Jet Limited bought a machine on 1st January 2008 for rupees 1 lakh and another machine on 1st April 2009, right, for rupees 2 lakh. And depreciation would be charged at the rate of 10% per annum by original cost method. And after that, on 1st October 2009, first machine was sold for rupees 80,000. Prepare machinery account up to 31st March 2010 only. And 1st March every year. Okay. So have you noted down? Okay, here Aman Tiwari. Yes, sir. Okay, beta. So now draw the format for the machinery account as I have taught you all yesterday. Okay. So I'm going to erase this now. To draw the format, in this question we are purchasing more than one assets. Now, yesterday we had studied only of one asset. Yes. Because this is the format. If you wish, ठीक है बेटा बुक में सिर्फ आपको दिखाया है how to prepare machine account. Okay. You are at learning stage, so you should know all the columns. That's why. Okay. But here we are not going to write anything. That's why the book has deleted this column now. But the full and correct format is this. So here you will write name of assets. Name of asset is what? Machine. So machinery account. Here you will write date and then particulars. Then JF rupees again date particulars JF and rupees. Okay. So you will see that you have purchased the first machine on which day? 1st January 2008. So here you will write 2008 January 1st. Okay. And when you will purchase, you should write to bank account. And for rupees 1 lakh. Okay. And when you will see in the question, no any other asset has been purchased in the current year because our accounting period is April to March and we have purchased on January 2008. So closing date would be March 31st, 2008. January and March in the same year. Got it? So here we will write 2008 and March
31st. We know that after purchase of assets, we need to charge depreciation every year on the closing date. Okay, closing date you all have written in the question, assuming that books are closed on 31st March every year. So if you have purchased on January, then it will close in March. Na? So March, how many months did you use these assets in the current accounting period? 3 months. Very good. Because January 1st to 31st January full month, then Feb 1st to last Feb, then March 1st to last March ना, यानी पूरे 3 महीने आपने यूज किया. So अब बताओ कि you have to calculate wear and tear value, that is what depreciation, for how many months? 3 months, right? क्योंकि आपने सिर्फ 3 months यूज किए. Doing your working note, you have to do on separate page. Okay, the machine cost is 1 lakh and rate of depreciation is given in the question. How much is it? 10%. You will see in the question 10% depreciation would be charged. Is that given now? Yes. Now, how many months you have used? 3 months. So would be how? कितना होगा? Yes, 2,500. So we will depreciate the machine for the 3 months only. That will be 2,500, right? So here we will write, so by depreciation, and here for 3 months you can write. No need to write here, but for your understanding, you can write here for 3 months. Because in the current accounting period, we have used only for the 3 months the assets from the day of purchase to the closing date, right? So 2,500, okay, 2,500 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया. After that, you know, as usual, we find the balance CD. Okay. So after using 3 months, what is the book value or cost of the assets for us? So you will do just like a ledger. Ledger ही है ये, like ledger नहीं, ये ledger ही है ना, बताया था मैंने. तो पहले 1 लाख मैंने लिखा यहाँ. Why? Because after by observing we can see that debit side is more. So जो ज्यादा है वही आप दोनों साइड लिखेंगे. 1 लाख. अब आप उसमें से इसको माइनस करेंगे. So 97,500 will be the balance. Okay. Now this balance would be transferred in the next accounting period, that will be 2008, because मार्च के बाद अप्रैल ही आएगा ना, अप्रैल 1st to balance BD. Okay, बेटा ये मार्च है, खरीदा तो मार्च कब आएगा? 80 में आएगा ना, ठीक है. कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वहां मैंने अप्रैल से परचेज ही किया था, तो अप्रैल से मार्च नेक्स्ट ईयर हो जाता, बट यहाँ मैंने सेम ईयर में परचेज भी है और सेम ईयर में क्लोज भी हो रहा है, क्योंकि जनवरी में परचेज किया और क्लोजिंग डेट आपका मार्च है, तो जनवरी के आगे जाओगे तो जनवरी तो 2018 होगा नहीं, तो वही रहेगा. सो यहाँ पर आ गया आपका 97,500. This is what the balance of the first assets what we have purchased, right? अब क्या करना है? We know that as usual we need to charge depreciation on the closing date. So when the closing date would come? March 31st, 2009.
But when you will read the question, so it is given another machine has been purchased when. See कौन सा accounting period है? ये same है या next है? Next है, यानी अभी उसका हमें कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग यहाँ आएंगे तो 2009 March 31st. Okay, so we will be charging depreciation and by which method हम लोग चार्ज कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। बताइए कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 10,000। वेरी गुड, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट इज रुपीज 1 लाख and 8% for the full year we will be charging here because we are using the machine from the April 2008 to March 31st 2009, total 12 months. So full year का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। Done. Now again you need to find the balance CD. So 97,500 माइनस करेंगे तो 87,500। सो देखिए फर्स्ट मशीन की सेकेंड ईयर के लास्ट में जो बैलेंस हुई वो 87,500 है। क्लियर हो रही है सभी को? हमने 1 लाख रुपए का खरीदा लेकिन पहले साल हमने सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर जो बचा उसको अप्रैल में रखा, फिर अप्रैल से मार्च तक फिर से पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो 10,000 मैंने लिखा। देन हमने बैलेंस निकाला 87,500। अब क्या करेंगे, फिर से बैलेंस ट्रांसफर होगा। सो 2009 अप्रैल 1st to balance BD. How much? 87,500. But keep in mind कि on the same day, on 1st April 2009, you have purchased another machine. So whenever you will be buying the machine, you will be writing to bank. Okay? For how much you have purchased? 2 lakhs. Done? अब क्या करना है? 2009 में anything else? Nothing. So we will be charging depreciation in 2009. Sir, 9 will become. अच्छा 9 में सेल है? Yes. Okay. So बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ सेल कब हुआ है? October 2009. Okay. So before closing date, you have sold out the first machine. Okay. So आप लोग यहाँ लिखेंगे 2009 and October 1st because on 1st October you have sold ना? So आपको पता है कल मैंने क्या बताया था कि जब सेल करेंगे तो उस दिन सबसे पहले हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कितने मंथ का? 6 सभी लोग ध्यान से समझो। फर्स्ट मशीन ये है, सेकेंड ये है, क्योंकि फर्स्ट जो पहले खरीदा गया था, तो इस मशीन का 1 अप्रैल को मेरे पास थी और हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक हमने उसे यूज किया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ओनली, बिकॉज अक्टूबर फर्स्ट है, हमने अक्टूबर में यूज नहीं किया, अक्टूबर में सेल कर दिया फर्स्ट डे, तो सितंबर तक यानी कि 6 मंथ हमने यूज किया। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए इस मशीन का? 5,000। क्यों? आप देख लो सभी लोग कि मैं यहां लिख दे रहा हूं वर्किंग कैसे आएगा। 1 लाख रुपए मशीन की वैल्यू है ओरिजिनल और रेट कितना है? 10% और आपका 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो 6 मंथ का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। ओके, तो जिस डेट को सेल कर रहे हैं उस डेट तक कितना मंथ हमने यूज किया उतने दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000।
तो कल मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, वर्किंग में मैंने सिखाया था। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अप टू सेल। कल मैंने वीडियो सेंड किया था, जो लोग नहीं थे वो लोग देखे होंगे। सो पहले मैंने बताया था डेप्रिसिएशन अप टू सेल, हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अप टू सेल। कैसे आएगा, तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उस मशीन की कीमत कितनी है, 87,500। कब है, 1 अप्रैल को। कब कर रहे हैं, अक्टूबर को। तो अक्टूबर तक की इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो अक्टूबर तक का जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से माइनस कर दें, 87,000 माइनस 5,000। सो कितना बचेगा, 82,500। ये हमारी कॉस्ट हो गई। और सेल कितने में कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लॉस हो रहा है। कितने का, 2,500 का। सो अब आप देखो यहाँ पे आपने सेल किया बाय बैंक। जब हम परचेस करेंगे तो टू बैंक और सेल करेंगे तो बाय बैंक। और फिर लॉस होने पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। जनरल एंट्री मैंने कराया हुआ है इसका। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड हो जाता, अगर मान लो सेल करने पे प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब क्या करना है, इस साल अब तो कोई मशीन खरीदा है नहीं अलग से, तो अब जो भी मशीन आपके पास बची हुई है उसका डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे कब, ऑन क्लोजिंग डेट। ऑन क्लोजिंग डेट 2010 और मार्च 31, राइट। सो लिखेंगे अब यहाँ बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन कौन सा मशीन का, तो ये हमने खरीदा था अप्रैल को, और अप्रैल को और डेप्रिसिएशन कब कर रहे हैं, मार्च में। तो पूरे एक साल हमने यूज किया है ना। तो 2 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 20,000। यहां तक आ गया, समझ में आया। अब क्या करना है, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। सो बैलेंस सीडी फाइंड करने के लिए आप पहले आप इधर टोटल करते हो, ठीक है। 87,500 और 2,87,500 और माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1,80,000। माइनस करके देख लो आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया सभी को, अदिति Yes, sir. नोट कर लिया, Yes, sir. ज्योत्सना, ज्योत्सना सिंह, हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, है सारा। Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। सो जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस। बैलेंस क्या हो गया, इफ यू वांट टू ट्रांसफर यू कैन पुट हियर, ओके। यहाँ तक हो गया, बोला ना आपको 31 मार्च 2010 तक प्रिपेयर करना है, तो हमने बना दिया। अब आप चाहो, आपके पास समय है तो यहाँ लिख सकते हो 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, आप लिख के छोड़ सकते हो 1,80,000, ठीक है, उससे कोई वो नहीं है। हाँ कल मैंने बताया था कि ऐसा करते हैं, कल के क्लास में इरेज कर दें। तो आप लोग को ओरिजिनल कॉस्ट समझ में आ रहा है ना। Yes, sir.
तो फिर लिखिए आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ। सार्थक लिमिटेड परचेज 2 assets, 2 assets न लिखकर हम नाम लिख देते हैं। 2 machine is 2 lakhs each on 1st October 2008. फिर लिखो depreciation is to be charged at the rate 10% per annum by straight line method. On 31st March every year. Okay? यहाँ तक समझ में? On 1st January 2010 first one machine was sold at a loss of rupees 10,000 and on the same day another machine was purchased for rupees 1 lakh. Prepare machine account up to 31st March 2010. So note down this question. कम समय बचा है हो गया? ओके बेटा आप सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? ये स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Okay, now draw the format Yes, and solving. Just I'm also solving here, but you all have to do yourself. फिनिश कर दें? डेटा आप लोग ये अभी भी मैंने प्रयोग किया, पता नहीं मेरे को याद रहेगा कि नहीं. ठीक है?
वैसे याद होना चाहिए। ओके तो लिखिए आप लोग। मशीन अकाउंट चलो हम भी जीएस का कॉलम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जीएस का कॉलम नहीं बना, लेकिन फॉर्मेट में है, बनानी तो अच्छी बात है, ये तो आपका करेक्ट होगा। हमेशा बनाओ, मैं तो यही कहूंगा हमेशा। वो बुक में दिया है क्योंकि बुक में, हाँ बुक में से तुरंत बहुत बड़ा कॉलम नहीं बनाना चाहिए, छोटा सा पतला सा, बस एक फॉर्मेलिटी होता है कॉलम पूरा करना है। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, बिकॉज यू आर एट लर्निंग स्टेज, यू शुड नो कि व्हाट नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी देयर। ओके, सो हियर डेट भी मैंने लिखा हूं, एक पर्टिकुलर आप लोग लिख लोगे क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। So 2008 October 1st, you have purchased a machine. So you have purchased how many machine? 2 lakh each, यानी 2 machines purchase किया है ना? So total 4 lakhs, ठीक है। अब आप चाहो तो डेप्रिसिएशन अलग अलग कर सकते हो, बट नो बेनिफिट, क्यों, कोई फायदा नहीं है। अमाउंट सेम है, डेट सेम है, तो एक साथ आप कर सकते हो। क्लोजिंग डेट वुड बी 2009 31st March, so by depreciation, so कितना आएगा, कितना आएगा और बताओ सभी, डेप्रिसिएशन कितना आएगा आदित्य? अदिति डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखो सभी लोग, दोनों मशीन मिलाकर आपने 4 लाख का परचेस किया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, ओके। एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव यू यूज्ड? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, 6 मंथ, सो इट विल बी 20,000, यानी 10,000 फॉर फर्स्ट एंड 10,000 फॉर सेकेंड ना, क्योंकि हम लोग कंबाइंड अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। Okay. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. फटाफट करना है, आप लोग करेंगे ना। तो बाय बैलेंस सीडी 3,80,000, ओके। 4 lakhs, मैं थोड़ा फास्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। 2009 अप्रैल 1st to balance BD. So the date would be 2010, but you are selling one of the assets when? 1st January 2010. So मार्च पहले आएगा या जनवरी? So 2010 जनवरी 1st को आप सेल कर रहे हो, तो सेलिंग मशीन का डेप्रिसिएशन आप लिखो, फिर कितने में सेल करना है वो लिखना है, और लॉस कितना हो रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 10,000, आपको डेप्रिसिएशन एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है।
ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो पहली मशीन बेच रहे हैं ना सिर्फ, एक मशीन कितने की है, 2 लाख रुपए की है। 10% कितने मंथ का, 9 मंथ का, बिकॉज अप्रैल टू 1 जनवरी कैलकुलेट करो कितना मंथ आएगा, 9 मंथ। ओके, सो 9 मंथ का कितना हो जाएगा, 15,000। सो 15,000 तो हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक, अब कितने रुपए में सेल करोगे कि 10,000 का लॉस आएगा। ठीक है, सो आप देखो कि 3,80,000 जो रुपीस यहाँ पर बैलेंस है, ये वाला बैलेंस यहाँ जो लाया गया है, ये 2 मशीन की कीमत है ना। सो अगर से 3,80,000 में से एक मशीन की कीमत पता करना है तो 1,90,000 हुआ, 1,90,000 1 अप्रैल को, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 15,000। तो डेप्रिसिएशन अगर माइनस करो तो कितना होगा, 1,75,000। ये क्या हो गया, कॉस्ट। और आप सेल कर रहे हो प्रॉफिट पे या लॉस पे, लॉस पे। प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, लॉस होगा तो माइनस, यानी लॉस अगर हम माइनस करेंगे 10,000 तो सेलिंग प्राइस जो होगा 1,65,000। सो यहां लिखेंगे 1,65,000। ठीक है, ये हो गया पहले मशीन का हिसाब किताब। जिस दिन सेल किया उसी दिन एक और मशीन खरीद लिया। सो कौन सा डेट है, 2010 जनवरी 1। तो यहां लिखेंगे टू बैंक, कितने का खरीदा है, 1 लाख का। गुड, तो यहां तक हो गया। तो अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, वर्किंग। अब इसके बाद हमें करना क्या है, डेप्रिसिएशन 31 मार्च को 2010 में ही लगाना है। तो 10 तो ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ 31 मार्च लिखेंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हम लोग 2 मशीन अलग अलग डेट को खरीदे और अमाउंट अलग अलग है। सो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, सॉरी सेकेंड का अलग और थर्ड का अलग, क्योंकि एक तो सेल हो चुका है तो दूसरा और तीसरा बचा। इसमें 2 मशीन था, एक सेल हो गया तो दूसरा बचा है, और थर्ड अभी मैंने खरीदा। तो पहले मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे फुल ईयर का, तो कितना 20,000। और थर्ड मशीन कब खरीदा हमने, जनवरी में। तो जनवरी 10 से लेकर मार्च 10 3 मंथ हमने यूज किया। सो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,500 आएगा, 10 लाख, सॉरी 1 लाख। 1 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 है ना। आराम से आप लोग करोगे फिर से 22,500। अब इसके बाद आप लोग बैलेंस फाइंड कर लो, खत्म हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो दोनों मशीन का अलग अलग निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड का। ठीक है, तो सेकेंड मशीन की कीमत यहाँ कितनी है, 1,90,000, क्योंकि एक पार्ट तो सेल हो चुका है। 190 बचा है, 190 में से कितना माइनस करोगे, 20, तो कितना बचेगा, 175। थर्ड मशीन की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए। 1 लाख में से 2,500 माइनस करो। ठीक, अब यहां लिख दो, ये आपका पूरा हो गया टोटल 4,80,000 दोनों साइड आएगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा आज जो मैंने बताया उसे आप लोग करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया सभी को, नहीं आया होगा Yes, sir. करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो।